in This a cloud. conference will now be recorded. Web server in cloud. So web server is called like your website. So there's a multiple way you can deploy a single instance server. You deploy a multi-instance server. So when you deploy the multi-instance server, you are using a load balancer with this scenario, and all servers are connected with a single load balancer, or you have using a single instance, so you don't require for any load balancer. So this is a single instance or single host, and this is a multi-host. This is a load balancer, and it is a multi-host infrastructure. So what is the difference? Like when you use a single host and this system IP is like a 1.1.1.1. So direct the public request. Public request is called this is the internet. This is the internet. The public request, that means the public request directly come to your system. So this is a single host. और when your server is goes down, और अगर आपका सर्वर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, so you nobody can recover this resources. Then इस problem को sort out करने के लिए the second option come to the multi-host. Multi-host, that means the all servers, web servers are connected with the centralized load balancer, and your public request come to this load balancer. The load balancer, it's a auto the one disadvantage, like the plus point, if any server load is increased or either your server goes down, the load balancer automatically forward your request to another server. When this server goes down, that forward request to another server. Also another thing is, the when the request is come in your load balancer, the load balancer equally distribute this server. But the problem is this, you are using the 3 servers and your 3 servers capacity is a 3 lakh, but your load is coming more than 3 lakh. If your load is coming the more than 3 lakh, the same infrastructure again goes down. Got in my point, guys? Everyone clear Yes, sir. the point? So how to resolve? So in a cloud, after cloud, there the one important part is coming, the scaling. The scaling feature is just like I'm create a single instance. I'm create a single instance, and with this single instance I'm attach a scaling features. Attach scaling. And in this attached scaling we have just add the rules is look like a target or like a some terms and condition. The what is the rule? When the maximum, first I'm set the maximum server limit or either 1000, कि मैक्सिमम कितने सर्वर्स आपके बन सके. तो चॉइस इज योर, यू कैन जस्ट गेट द 1 or 1000 choice. So like I'm put the maximum 10 servers. Second, instance need 1, और हमें जो इंस्टेंस की नीड चाहिए कि वो एक एक सर्वर करके हमें मिले. बट कब? व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 90% or equal to greater than 90%, greater than equals to 90%. तो मैंने कंडीशन डाली है कि व्हेन दिस सिंगल सिस्टम इंस्टेंस सीपीयू यूटिलाइजेशन 90% से ऊपर जाता है, तो द ऑटोमेटिकली create a one new server. If the both systems
CPU cross the 90%, then again create a one more server. तो नीड अ वन इंस्टेंस का मतलब है कि एक एक करके मेरे सर्वर्स ऐड हो, या दो दो सर्वर करके ऐड हो, या फाइव फाइव करके ऐड हो, तो वो आप इंस्टेंस नीड में आप ऐड ऑन कर सकते हैं. स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. और व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन लेस देन 90%, द ऑटोमेटिकली servers are removed. Got to the point guys, the meaning of scaling features. What happens कि अगर आपका यहाँ पे लोड इंक्रीज होता है सिंगल इंस्टेंस वाले में, तो वो क्या करेगा कि पहले क्या था कि आपका सर्वर क्रैश ही कर जाएगा, बट अब वो क्या करेगा, वो नया सर्वर आ जाएगा और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. एंड अगर आपका लोड डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली सर्वर्स को रिमूव कर देगा. सेकंड कि अगर आपका कोई एक्टिव सर्वर, ये एक्टिव सर्वर क्रैश भी हो जाता है, तो उसकी जगह ये ऑटोमेटिकली न्यू सर्वर्स भी बना देगा ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन से वो आपका क्रैश होता है. तो ऑल्सो कि अब आता है कि यहाँ पे सर अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि नीड अ 5 सर्वर्स, कि हमारा लोड आ गया और इसने ऑटोमेटिकली 5 सर्वर्स क्रिएट कर दिए. तो अगर यहाँ पे टोटल 5 सर्वर्स हो गए, सो वी हैव जस्ट यूजिंग द लोड बैलेंसर ऑल्सो, कि ये जो 5 सर्वर्स क्रिएट हो रहे हैं ना, तो इस 5 सर्वर्स कहाँ पे अटैच हो जाए ऑटोमेटिकली, इट्स कनेक्ट विद load balancer, and your public request come to in your load balancer. Got it everyone? The concept of the auto scaling, why we are using the auto scaling. Any question related to this? But guys, the one question कि अगर आपका पहला सर्वर क्रैश होता है तो न्यू सर्वर उसे मिरर कॉपी, वो उसकी क्या आनी चाहिए, मिररिंग आनी चाहिए, दैट इज द मिरर कॉपी. तो मिरर कॉपी बनाने के लिए वी हैव क्रिएट अ AMI, क्रिएट अ कस्टम AMI. तो उसके लिए हम कस्टम AMI बनाएंगे. कस्टम AMI का मतलब है देयर आर द टू टाइप्स ऑफ AMI हमारी होती है. देयर आर टाइप्स ऑफ AMI, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ AMI. वन इज डिफॉल्ट AMI, default AMI. So what is the meaning of default AMI? I'm just login with portal, and how to create the use of default AMI, and I'm just login with the Amazon portal. And go to the services and then click on EC2. When you click on EC2, first you select the region. Secondly, the option, you can just click on a launch instance. When you click the launch instance, तो यहाँ पे जो भी AMI दिखा रहे हैं, this is a default AMI. This all is your default AMI. Default AMI का मतलब है there is no any configuration. आपको XYZ जो भी काम करना है वो मैनुअली यहाँ पे काम करना पड़ेगा. तो अब एक बात बताइए कि अगर आप ऑटो स्केलिंग के अंदर डिफॉल्ट AMI यूज करेंगे तो क्या उस पर आपकी वेबसाइट आएगी? क्योंकि आपको पता है कि व्हेन यू यूज द डिफॉल्ट AMI, तो डिफॉल्ट AMI के बाद हमें IIS सर्विस भी इंस्टॉल करनी पड़ती है और उसके बाद वेबसाइट भी क्रिएट करनी पड़ती है, जैसा कि हमने कल करा था. सारा काम हमने मैनुअली करा था, बट ये सारे काम थोड़ी ना होंगे ऑटो स्केलिंग के अंदर. तो हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI? तो कस्टम AMI के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आई एम क्रिएट अ वन सर्वर विद द डिफॉल्ट AMI. तो डिफॉल्ट AMI से हम किस तरीके से सर्वर क्रिएट करेंगे? सो आई एम जस्ट सर्च इन अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, server 2012, select a Microsoft Windows server, select, and then select the hardware type is T2 micro, and I'm deploy this server for availability zone 1A, and enable the public IP. Then next, this is my storage. Then next, I'm just give the name of server, and configure the security group. I'm select the existing security group create in a last class. Web server is the HTTP and HTTPS protocols are available, or either you can select multiple security group with this single instance.
and review and launch, and now I'm select a key pair, so web server key in Windows, and last class I'm create and launch instance. तो गाइस यहाँ पर जो मैंने ये सर्वर बनाया है, ये सर्वर्स मैंने किस AMI के थ्रू बनाया है? I am deployed this server through a default AMI. Default AMI means the provided by AWS. So default AMI provided by the AWS. Got it the point? Is it clear everyone? Guys, please reply. Yeah, it's clear, sir. Yes, sir. Now the next option is कि after default AMI, so we have installed. So default AMI के बाद मुझे को यहाँ पे मैनुअली सारे काम करने पड़ेंगे. लाइक मैनुअली का मतलब फर्स्ट मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार कॉन्सेप्ट की पेयर वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं. मैं तो अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रखना चाहता हूं अपने सर्वर का. तो चेंज द पासवर्ड. मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पासवर्ड चेंज करूंगा. करेक्ट. तो आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रख सकते हो. नाउ इंस्टॉल IIS. मेरे को वेब सर्वर बनाना है, सो आई इंस्टॉल द IIS सर्विस. मैनुअली काम कर रहा हूँ गाइस ये सारे काम. एंड डिप्लॉय वेबसाइट वेब कोड, और यहां पर मैं अपना वेब कोड रख दूंगा. तो गाइस ये सारा का सारा काम अगर आप डिफॉल्ट AMI यूज करते हो तो डिफॉल्ट AMI में दिस ऑल वर्क यानी कि XYZ जो भी आपको काम करना है वो सारा का सारा मैनुअली करना पड़ेगा. देखिए गाइस सिंपल सा है कि आज आप सभी लोग अपना एक लैपटॉप यूज कर रहे हो. मैं नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं है यार, आप लोग तो कर ही रहे हो ना. अब आप लोग अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो और आपने अपने लैपटॉप पे क्या करा हुआ है? VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा हुआ है, MS ऑफिस इंस्टॉल करा हुआ है, अदर जावा इंस्टॉल करा हुआ है, पाइथन इंस्टॉल करा हुआ है, काफी सारे सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करे हुए हैं. गॉट इट. तो आप क्या करते हो? सबसे पहले यू कैन इंस्टॉल द विंडो 10 और आफ्टर यू कैन इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट. यस और नो? अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि यार आपको अपना लैपटॉप की विंडोज चेंज करनी है, आपको अपना लैपटॉप फॉर्मेट करना है, तो जब आप विंडोज फॉर्मेट करोगे तो दोबारा से क्या होगा? आपको ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे या नहीं? गाइस इंस्टॉल करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको एक इमेज दी है उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है. उसने सिर्फ विंडो 10 की इमेज दी है. सबसे पहले आपने विंडो 10 इंस्टॉल करी और उसके बाद वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपने इस पर इंस्टॉल करे. गाइस यही होता है? यस और नो? तो अब यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं तो कि आपको अपना लैपटॉप फॉर्मेट करना है तो आप इजीली अपना लैपटॉप फॉर्मेट नहीं करोगे, क्योंकि आप सब सोचोगे कि यार इतने सारे सॉफ्टवेयर्स मेरे को दोबारा से ऐड ऑन करने पड़ेंगे, पूरा डेटा कॉपी करना पड़ेगा. यस और नो? बट अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको अगर एक ऐसी इमेज दे दूं जिसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर भी आ जाएं और आपका डेटा भी आ जाए और आपको विंडो फॉर्मेट करनी है और आप इस इमेज से करिए, तो आपके जो XYZ जो भी सारी चीजें पहले थी वो सारी अपने आप आ जाएंगी. तो क्या आपको प्रॉब्लम आएगी फॉर्मेट करने में? नहीं सर. एवरीवन. सो गाइस दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि मैंने पहले डिफॉल्ट AMI से एक सर्वर बनाऊंगा और इस सर्वर की मैं क्या क्रिएट कर लूंगा? एक कस्टम AMI क्रिएट कर लूंगा. तो क्रिएट अ कस्टम AMI. कस्टम AMI. सो जब मैं इसकी कस्टम AMI, दैट मींस आपकी अपनी खुद की सेटिंग्स होंगी इस AMI के अंदर. और अब मैं जब नए सर्वर्स बनाऊंगा ऑटो स्केलिंग के अंदर, मैं डिफॉल्ट AMI यूज ना करके आई एम यूजिंग दिस कस्टम AMI. और जब ये कस्टम AMI होगी तो कोई भी नया सर्वर बनेगा तो उस सर्वर पे जो भी इसके अंदर होगा वो सारी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी. तो मुझे ना तो मैनुअली पासवर्ड चेंज करना किसी भी सर्वर का, ना ही कोई IIS इंस्टॉल करना, ना ही कोई मुझे वेबसाइट डिप्लॉय करनी. वो सारी की सारी चीज ऑलरेडी मैंने अपनी AMI के अंदर एड ऑन कर दिया. तो अब कोई भी नया सर्वर आएगा तो पुराने सर्वर की मिरर कॉपी बन के आएगा. गॉट इट द पॉइंट गाइस? everyone. So now how to create? So first of all I'm create a one server manually, then मैं AMI create करूंगा. So I'm just log in with this server, click on this server and then click on connect and RDP and then get password, browse and select the key pair, copy and download remote desktop sessions.
then click on connect and paste. And first I'm change the password. How to change the password? So I'm change the password of this particular virtual server. So I'm just go to the command prompt like cmd, open or run cmd and net space usr user space administrar and password is, yeah, I'm also using the load balancer because कि अगर आपके मल्टीपल सर्वर्स बनेंगे तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द लोड बैलेंसर. गॉट इट अभिनव? So Yes, sir. net space user space administrator and I put the password of this machine is ASD at 12345. तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी इस मशीन का पासवर्ड चेंज कर दिया. नाउ आई एम इंस्टॉल द IIS सर्विस रोल. आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज टैब एंड देन क्लिक ऑन our server manager, and inside the server manager I'm just click add roles and features. So I'm just click add roles and features and then click next, 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 and select the web server IIS and next, 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 and install. Then we are moving. Is it I'm just copy the one website. So I'm just click on Google. I'm go to the Google and download the new website for you. So I'm just go to the Google और मैं Google से आके एक डेमो वेबसाइट डाउनलोड कर लेता हूँ. So CSS HTML website templates, and now we have just download. These are the multiple websites are available. So we download the new website for you कि आपको ये ना पता लगे कि सर हम ये वेबसाइट्स कहाँ से, तो ये ले लेते हैं, साइकिल सबसे बढ़िया है. तो now the download this website and just click and open. Wait, and now the speed, and now I'm just copy this entire website and paste this website in a C drive. Inside the C drive inet pub directory is created automatically, जो कि मैं लास्ट क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ. inet pub, and inside the admin www root I'm delete this one and now paste the website. तो ये entire website मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया. So after that I'm just close this sessions, all sessions, and now I'm create one more folders like this is your data, one kinds of like a CLOUD cloud data. So this is your data, and I'm just close this machines, और मैंने इस machine को close कर दिया guys. Now you can see कि first time check कि my web server is working or not. So जो मैंने default AMI से बनाया, I'm just copy this public IP and paste in a browser, and you can see that my website is working perfectly. Got it guys? So now the next, how to create custom AMI. So guys, किसी भी सर्वर की आपको custom AMI करनी है तो first you can select the server and then go to the actions. Or inside the action you can see the option is available, the image and templates. You can just click on image and templates and then click on a create image and give the image like my SPEED speed AMI. I'm giving this name and now click on a create. So guys, your image is created. So आपको बताता हूँ ये जो image आपकी create हो रही है ये आपको AMIs के अंदर display होगी. So now you can just click on AMIs and देखिए यहाँ पर आपकी my speed AMI के नाम से यहाँ पर आपकी AMI बनना start हो गई है.
Got it the point how to create AMI? Everyone, is it clear? So first आपको अपना एक सर्वर प्रिपेयर करना है, then create AMI. Any question related to this, everyone? Anyone, any question? Yeah, Shavi, any question? Okay, fine. So guys, I'm also create a one load balancer. अब देखिए लोड बैलेंसर के अंदर टू थिंग्स आती हैं कि आपका आता है लोड बैलेंसर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है फ्रंट एंड और एक आता है बैक एंड. बैक एंड यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो लोड बैलेंसर है वो अपनी रिक्वेस्ट किसको टारगेट करेगा, बैक एंड. और बैक एंड पे मेरे क्या होंगे, वेब सर्वर्स होंगे. सो वी हैव क्रिएट अ टारगेट ग्रुप. मैं यहाँ पे एक टारगेट ग्रुप बनाऊंगा. ओके, आई एम क्रिएट टारगेट ग्रुप. तो अगर मैं ऑटो स्केलिंग वाला फीचर्स कर रहा हूं या मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करता हूं, सो नाउ आई एम कॉन्फ़िगर टुडे इन एप्लीकेशन. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिक लोड बैलेंसर है. सो एप्लीकेशन गेटवे के अंदर यू कैन कॉन्फ़िगर द टारगेट ग्रुप कि जो लोड बैलेंसर के पास जो रिक्वेस्ट आएगी, सो लोड बैलेंसर उसको आईपी के बेस पर भेजे या इंस्टेंस के बेस पे भेजे. सो वी हैव सिलेक्ट द टारगेट ग्रुप. सो आई एम जस्ट हाउ टू क्रिएट अ टारगेट ग्रुप. सो आई एम जस्ट गो टू द लोड बैलेंसिंग और लोड बैलेंसिंग के अंदर यू कैन सी द ऑप्शन is available in target group. So this is the option is target group. I'm just click on the target group. I'm just delete this one. And now the create a target group. And I'm asking the your load balancer routes request to the target in a target group. So मैं चाहता हूँ कि मेरी जो request आए load balancer से वो कहाँ पर है, मेरे instances पे आए. Instances means server पे. And किस particular port number से आए, it's come for the port number HTTP and port number 80 से आए. And now the use the default VPC and nothing of skill. And now just click on a next. And target group name is like my web server instanc instance tg. So you can give the any name. And now click on a next. And port number 80. So this is my server is available. I'm not select any server. And just create a target. And guys, I'm just create a target. I'm create a one web server instance. Now I'm create a load balancer. So how to create a load balancer? Just click again load balancer. Last class में भी हमने करा था, same ही process है. And create load balancer. You can see the last class में we have create a classic load balancer. Now today I'm create a application load balancer. So click on a create. Or after create, give the load balancer name is app-lb1. And these are the schema. It's called you can create an internal or public load balancer. The internet facing, that means an internet facing load balancing route request from client over the internet to the targets. So we have select the internet facing. I'm using the IPv4 addresses using the default subnets. और I'm asking कि my server जो भी मेरे servers automatically create करेंगे, it's create in John A and John B. तो ये जो सर्वर्स हैं इधर मेरे जॉन ए के अंदर क्रिएट हो. कल भी आपको पता है कि जब मैंने मैनुअली सर्वर्स बनाए थे, तो मैनुअल सर्वर जो मैंने वहां पर बनाए थे, तो मैंने वहां पर जॉन ए और बी में बनाए थे. बट मैं अभी ने कोई भी मैंने अभी सर्वर नहीं बनाया है, और जो एक सर्वर बना भी हुआ है मैं उसको भी अभी डिलीट कर दूंगा. तो नाउ आई एम कि मेरे जो भी ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली सर्वर लॉन्च करेगा, वो या तो इधर ए में करे या इधर बी में होंगे. And security group, so I'm select web server 2 SG security group. The allow the port number HTTP and 80, and the what is the action is called your target group. So I'm just select the target group, my web server instance. So the load balancer forward the request for this particular target group, and these are the summary. And now create a load balancer. So review and view the successfully created and view the load balancer. So now these can see there the one load balancer are created. And guys, I'm share with you this URL. इस URL से आपका क्या होगा, एक्सेस होगा. बट अभी मेरा कोई सर्वर अटैच नहीं हुआ है, सो इस समय ये वर्किंग में नहीं होगा. नाउ यू कैन सी इट्स नॉट वर्किंग. और लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर में भी पेस्ट करता हूँ, तो यू कैन सी इट गिव यू द एरर, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड.
So now I'm create a one load target group and load balancer also, and I'm seeing either my AMI is complete हुई या नहीं. So that my AMI is available. Or guys, this is my instances. Now I'm delete this instance, select and terminate. So अभी मेरे पास कोई सर्वर भी नहीं है, यानी कि लास्ट क्लास में मैंने सर्वर्स बनाए थे, बट अभी मेरे पास कोई भी सर्वर नहीं है. आफ्टर दैट कि मैंने लोड बैलेंसर बना लिया, AMI बना ली, टारगेट ग्रुप, द ऑटो स्केलिंग फीचर्स. So auto scaling features के अंदर there are the two types of configuration. One is launch configuration. What is the meaning of the launch configuration, guys? कि आपके जो भी ऑटोमेटिकली सर्वर्स डिप्लॉय होंगे, उन सर्वर्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, लाइक उनके अंदर कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, हार्डवेयर टाइप कितनी सीपीयू कितना रैम होगा, सिक्योरिटी ग्रुप कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड होंगे. तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशंस में ऐड करनी होगी. So I'm just click on the launch configuration and create launch configuration. And suppose karo I'm just give the launch configuration name is FLIP Flipkart website and the Amazon machine image. अब वो कह रहे हैं कि जो भी आप launch configuration है उसमें आप कौन सी इमेज रखना चाहते हो. अगर आप डिफॉल्ट इमेज रखते हो तो उस पर आपकी कोई भी वेबसाइट है ही नहीं. तो आई एम यूजिंग द कस्टम AMI. सो कस्टम AMI मैंने किस नाम से बनाई थी, माई स्पीड AMI के नाम से. आई एम सेलेक्ट दिस AMI. देन इंस्टेंस टाइप, यू नो कि इंस्टेंस टाइप के अंदर जो फ्री टायर अकाउंट है मेरा, तो फ्री टायर के अंदर इज T2.micro. So I'm search T2.mic micro and select. So मैंने यहाँ पे हार्डवेयर भी IAM. I'm not explaining the IAM role, so I'm just skip this one. And volumes, the 30 GB is free tier volume. Security groups, it's create a new or existing. So I'm select the existing security group. Why I'm creating the new? मैं existing security group पे select कर रहा हूँ. And guys, what is the key pair option? So I'm select which one options. मैं यहाँ पे कौन सा option select करूँ? Existing, new या without a key pair? Guys, please reply. Guys, बताइए. I'm select a process without a key pair. I know the password of the AMI. डिफॉल्ट AMI का पासवर्ड मुझे नहीं पता था क्योंकि वो मेरे को की पेयर से मिलता है. बट अब मैं जो AMI कर रहा हूं उसका पासवर्ड मुझे पता है क्योंकि मैंने मैन्युअली पासवर्ड चेंज करा है. तो अगर आप यहाँ पे की पेयर ऐड भी कर दोगे तो भी वो काम नहीं करेगा. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? मैंने Yes, पासवर्ड sir. चेंज करा था, याद हो कस्टम AMI का. एक चीज ध्यान रख लेना, आपने जब AMI बना ली तो आप पासवर्ड दोबारा चेंज नहीं कर सकते, वही पासवर्ड फिक्स रहेगा आपका. एंड आई एक्नॉलेज एंड क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन. गाइस क्लियर हुआ मैंने क्यों वहां पे प्रोसेस विदाउट अ की पेयर करा था एवरीवन? Yes, sir. Now the next I'm just create a auto scaling group. So I'm just click on auto scaling group एंड अब वो रूल्स मेरे को डालने पड़ेंगे कि मेरी स्केलिंग कब हो, यानी कि मेरे जो सर्वर्स हैं वो कब ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो और कहां पर और किस लोकेशन पे डिप्लॉय हो. सो आई एम जस्ट क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप. गिव द स्केलिंग नेम इज my SCALING scaling. And now the switch to launch configuration. So मैं चाहता हूं जो मैंने launch configuration select करे, I'm select this one. कि अब जो भी सर्वर्स बनेंगे ऑटो स्केलिंग के थ्रू उनका फ्लिपकार्ट वेबसाइट के नाम से होंगे, उसकी AMI ये होगी. T2 माइक्रो सभी को हार्डवेयर मिलेगा, सिक्योरिटी ग्रुप उनको ये वाला मिलेगा और की पेयर किसी को भी एलोकेट नहीं होगा क्योंकि आई एम सिलेक्टेड विदाउट अ की पेयर. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. VPC वो पूछा कि कहां पर किस लोकेशन में आप चाहते थे. फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन यू कैन द यूज द मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स. लेट्स सी द ऑटो स्केलिंग बैलेंस योर इंस्टेंस अक्रॉस द जोन्स. तो आप कहां पर बनाना चाहते हो, कि मेरे जो सर्वर्स हैं वो A के अंदर डिप्लॉय हो या B के अंदर डिप्लॉय हो. सो आई एम सेलेक्ट द टू जोन. फ्री टायर कस्टमर देयर इज नॉट एप्लीकेबल द C. एंड नाउ द क्लिक ऑन द नेक्स्ट. यू कैन अटैच लोड बैलेंसर. अगर आप लोड बैलेंसर अटैच नहीं करते तो आपको हर सिस्टम पे डायरेक्टली ट्रैफिक जाएगा और आपको हर सिस्टम के IP शेयर करने पड़ेंगे. सो आई एम सेलेक्ट या अटैच टू द एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर और आइदर यू कैन क्रिएट अ न्यू वन. मैंने कौन सा बनाया था, आई एम क्रिएट अ एप्लीकेशन.
So now the application, we have select the target group. This is my target group, and this target group attached with my load balancer already. Now the health check means that forward the request. तो लोड बैलेंसर अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, एंड दिस इज अ डिजायर कैपेसिटी कि आप चाहते हो कि आपका मिनिमम कितना सर्वर बने, एक से स्टार्टअप हो, 2 से स्टार्टअप हो या 10 से हो. तो मैं चाहता हूं कि मिनिमम 1, मैक्सिमम कितने बने. तो चॉइस इज यूर कि हम मैक्सिमम 100 चाहते हो, 200. मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ मिनिमम 1 ही रहे मेरा, इससे ज्यादा ना रहे. और अगर मेरा लोड इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम 10 बन सके. और अगर आप फर्दर आपका उससे भी ज्यादा है तो विद इन अ मिनट आप इसको एडिट कर सकते हो, बट इतनी जल्दी नया सर्वर बनाना पॉसिबिलिटी नहीं है. सो नेक्स्ट इज सिंपली कि आई एम जस्ट click the scaling policy, the target tracking scaling policy, that the when the CPU utilizations of 90%, instance need in within a 60 seconds. Got it? तो मैं चाहता हूं कि मेरा CPU यूटिलाइजेशन अगर 90% क्रॉस होता है, तो मेरे को विद इन 60 सेकेंड और विद इन 100 सेकेंड आपका इंस्टेंस यानी कि मेरा नया सर्वर मेरे को मिल जाए. देन नेक्स्ट, दिस इज अ नोटिफिकेशन जो मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट वीकेंड पे हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीकेंड पे, कि अगर आपका कोई भी सर्वर बनता है तो जिस तरीके से आपके बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो आपके पास मोबाइल पे अलर्ट आ जाता है ना, इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगर मेरा कोई भी सर्वर क्रैश होता है या न्यू क्रिएट होता है या फेल होता है तो उसके अलर्ट्स मेरे को मेरी मेल आईडी पे मिलते रहे. स्केलिंग का स्टेटस, सो वी कैन ऐड द नोटिफिकेशन. सो आई एम नॉट एडिंग द नोटिफिकेशन बिकॉज मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे एसएनएस बनाया, सॉरी डिलीटेड है. तो अगर आपका कोई भी सर्वर लॉन्च होता है या टर्मिनेट होता है या फेल्ड होता है तो इन सारी चीज की इंफॉर्मेशन आपको आपकी मेल आईडी पे मिल जाएगी, बट आई एम नॉट यूजिंग दिस वन. एंड नेक्स्ट, the tag I'm just give the name, tag is nothing, this is a comment. जो भी सर्वर्स आपके बनेंगे, टैग न्यू इंस्टेंस, कि आप चाह रहे हो कि जो भी नया सर्वर बन पे आए उस पर क्या टैगिंग लिखा है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VMSCALING scaling, and now the click on next and create auto scaling group. So guys, मैंने क्या अभी तक कहीं पर कोई सर्वर बनाए हैं? मैंने कोई स्केलिंग के अंदर कोई सर्वर डिप्लॉय करे हैं? कोई मैनुअल सर्वर अभी तक बनाया? जो एक बना हुआ था वो भी मैंने डिलीट कर दिया था. एक चीज ध्यान रखना, व्हेन यू क्रिएट ऑटो स्केलिंग, कभी भी आपको मैनुअल सर्वर्स नहीं बनाने हैं. आपके जो भी सर्वर्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली बनेंगे. तो स्केलिंग के अंदर आपको मैनुअल सर्वर्स नहीं बनाने हैं. तो मैंने जब अपनी कैपेसिटी दी थी कि मिनिमम 1, डिजायर कैपेसिटी 1 और मैक्सिमम 10, तो जो मैंने मिनिमम 1 दिया था ना, तो ऑटोमेटिकली स्केलिंग मेरा एक सर्वर बना देगी. और यू कैन सी इन इंस्टेंसेस, आप इंस्टेंसेस में नहीं, अभी नहीं, फिलहाल स्टार्टअप एक से करेगी. तो यू कैन सी द आई एम जस्ट गो टू द इंस्टेंसेस, और इंस्टेंसेस में आगे देखिए वीएम स्केलिंग के नाम से उसने यहाँ पे एक सर्वर डिप्लॉय कर दिया. एंड जो वेबसाइट मेरी नहीं चल रही थी, आई एम जस्ट रिफ्रेश. गॉट इट द पॉइंट गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी आपने देखा था कि जब तक इस यूआरएल पे मैंने सर्वर अटैच नहीं करे थे तो कैन नॉट भी डिस्प्ले आ रहा था. बट देखिए अगर आपका सर्वर क्रैश होता है, लाइक योर सर्वर इज क्रैश, मैंने क्या करा, सपोज करो मेरा सर्वर क्रैश, तो देखिए मैंने पहले ऊपर वाला सर्वर भी तो वेब सर्वर था, मैंने क्रैश करा, वो नहीं बना. बट ये सर्वर क्रैश करते ही क्या होगा कि मेरी एक तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी. बट मैंने एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताया है कि अगर आपका सर्वर भी क्रैश होता है तो भी उसकी जगह अपने आप नया सर्वर बन जाएगा. So now I'm just crack the server and you can see the website. So I'm display, it is setting down. All right, the terminate, full flash terminate. It's terminated and now I'm just click on here. Your website is temporary unavailable. अब आपका कैन नॉट भी डिस्प्ले लिखा नहीं आ रहा, अनअवेलेबल फॉर टेम्पररी.
एंड यू कैन सी द विद इन अ मिनट आपकी जो वेबसाइट है ये दोबारा से लाइव हो जाएगी। क्योंकि मैंने लिखा था कि अगर आपका सर्वर डाउन जाता है, क्योंकि मैंने 2 सर्वर है, अगर मैं यहाँ पे 2 सर्वर लगाता, अगर एक सर्वर भी डाउन होता तो लोड बैलेंसर इस रिक्वेस्ट को मेरे दूसरे सर्वर पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होता, तो ये मैसेज भी आपको यहाँ पर नहीं आता। गॉट इट माय पॉइंट। बट मैंने एक सिंगल सर्वर ही लगाया था, तो नया सर्वर आने में जब तक टाइम है, तो जब तक ये टेम्परेरी अनअवेलेबल बोलेगी। नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ रिफ्रेश, और ये देखिए मेरा नया सर्वर यहाँ पे अपने आप बन के आ गया विद द नेम ऑफ वीएम स्केलिंग के नाम से। गॉट इट द पॉइंट गाइस। तो एक चीज ध्यान रखना, आप चाहे जितनी बार भी सर्वर डिलीट करते रहना, आपके सर्वर्स अपने आप बनते रहेंगे। जब तक आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट नहीं करेंगे, आपका ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। तो जब आप लैब करो, तो लैब करने के बाद ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करना मत बोलना। अगर आप सोचो कि आपने यहाँ से मशीन टर्मिनेट कर दिया और पोर्टल बंद कर दिया, तो वो 1 या 2 मिनट के बाद दोबारा से नए सर्वर क्रिएट कर देगा और आपके चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जब इस लैब को करें, तो यू कैन डिलीट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्योंकि स्केलिंग ग्रुप करेंगे तो उसके थ्रू जो भी सर्वर्स बने वो सारे अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। Now you can see the website. I'm just click on refresh, and again my website is working. Now I'm just login with this website, and I'm just copy the public IP and go to the remote desktop. So guys देखिए, वो मैंने एक फोल्डर बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। So I'm just paste and then click on a connect, and what is the username is ADMINISTRATOR, and my password is ASD@12345, क्योंकि I know the password of this AMI, और ये सर्वर मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए वो क्लाउड डेटा भी आ गया इस पर। क्यों? क्योंकि मैनेज के अंदर यूज करिए कस्टम एमआई, और कस्टम एमआई के अंदर जो भी सेटिंग्स दी है वो मेरे को हर सर्वर पे मिलेगी। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं एक ट्राई करके देखता हूँ। सो हो तो जाना चाहिए। आई एम क्रिएट अ वन फाइल इज नोटपैड। ये हो भी सकता है ना भी हो, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। a.bat sometime हो जाता है, sometime नहीं होता। So this is a a.bat file. I am create a one file. I am just save this file on a desktop and a.bat, and now I'm just double click on this file and I'm just run this script. That means ये क्या करेगा, ये मेरी इस मशीन के CPU के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देगा। So you can see the CPU utilization. Go to the task manager. Uh-oh. And see the utilization of 99%. बट मैंने कंडीशन क्या लगाई है, व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन 90%, तो क्या होना चाहिए गाइस? व्हाट हैपन? सर नया सर्वर बन जाना चाहिए। एक और सर्वर मेरा बन जाना चाहिए, कि अभी एक सर्वर है, अब क्या हो जाने चाहिए? 2 हो जाने चाहिए। और जब दोनों का इक्वल होगा तो एक और मैक्सिमम कितने बनने चाहिए? 10। तो चलिए चेक करते हैं 1 मिनट तक। द 816 हो रहा है, तो 817 तक वेट करते हैं। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। तो I'm just stop the recording. This conference will now be recorded. So गाइस यू कैन सी कि मैं यहाँ पर जाता हूँ अपना इंस्टेंसेस के अंदर, एंड देखिए कि यहाँ पे मेरे दोबारा से दोनों सर्वर्स आ चुके हैं। एंड दिस इज द सेकंड वीएम जो अभी इनिशियलाइज हुई है, एंड दिस इज द फर्स्ट वन। तो ये देखिए इनिशियलाइज हो रहा है। सो लोड इंक्रीज होने पे ऑटोमेटिकली आपके वीएम सारी की सारी वीएम्स आ चुकी हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि अगर आपको डिलीट करना है प्रोसेस, तो यू ऑलवेज डिलीट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, अदरवाइज ये आपकी VMs ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो टर्मिनेट मत करना, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द स्केलिंग ग्रुप एंड डिलीट। Also I'm delete load balancer. So guys यहाँ पे भी आप cover these two topics and delete. So now I'm just cover the auto scaling is finished, load balancer is finished,
नेटवर्क सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर इलास्टिक आईपी इज योर स्टैटिक आईपी और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ लैन कार्ड ऑफ दिस वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज इज योर वॉल्यूम, सो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। AMI and instances, so these are the theoretical. What is spot request, reserve instance, these are the theoretical. So next class we have finished the EC2 section, and EC2 section next class is very important guys. So काफी कुछ आपकी जो वर्चुअल सर्वर्स बनते हैं उनके वॉल्यूम्स को अगर आपको मल्टीपल हार्ड ड्राइव सेट करनी है या बैकअप्स वगैरह है तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। So thank you guys and continue in next